Hello everyone. Welcome back to e-learning of cooperations lecture. Okay. In our last lecture, we are completed with our first chapter. Okay. We are not going to start second chapter. It is about letters. It is about correspondence. That is letters. Okay. We are not going to start it. I want you all to be present in college. Let's see क्या होता है आगे अगर कॉलेज बाई चांस स्टार्ट होता है सब कुछ ठीक हो जाता है कॉलेज स्टार्ट होता है तो that is very important topic actually that comes for 20 marks in your exam. अगर कॉलेज नहीं भी स्टार्ट होता है जनवरी तक देन आई विल टीच यू दैट इन जनवरी सो दैट इट आपके माइंड में वो फ्रेश रहेगा लेटर. ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ थर्ड चैप्टर नाउ. विल स्किप second chapter for now. We will continue with second chapter in January. Okay, we'll start with third chapter today, that is commissioner and registrar of cooperative societies. It is very important topic and very easy topic, very much easy topic. You know everything about societies now. So let us proceed with the PPT, third chapter. Okay, that is commissioner and registrar of cooperative societies. Meaning, who is a commissioner? Who is a registrar? The person who is appointed by state government to control cooperative societies is called registrar. Means it is appointed by state government. I have given that in bold letters. Appointed by state government. That person is known as registrar, and person who registers the cooperative society, controls and guides is called as registrar. Yes, person who registers the cooperative society. Without registration, company or society cannot commence, cannot start. Okay. So who gives permission, who gives registration certificate to CS, that is registrar. Okay. The officer appointed at state level by the cooperative department is known as commissioner and registrar of cooperative societies. Okay, these are the commissioner and registrar appointed by state government to control, to guide, to help, to give registration certificate to societies. Okay, let us learn about them. Role of commissioner and registrar. Let's see what are their roles, what they do. First one is representative. Yes, registrar or commissioner are the representative of whom? जैसे कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम किस तक जाएगा? रजिस्ट्रार के पास. और रजिस्ट्रार के पास से प्रॉब्लम किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास. मीन्स रजिस्ट्रार स्टेट गवर्नमेंट के पास किसकी प्रॉब्लम बोल रहा है? सीएस की. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रजिस्ट्रार और कमिश्नर. अब स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ न्यू रूल्स बनाए हैं. दे हैव फ्रेम न्यू रूल्स, न्यू पॉलिसीज, न्यू गाइडलाइंस. Who will convey that message to cooperative societies? That is registrar. Okay, he is the representative of cooperative society and for state government, and he is a representative of state government to cooperative society. नेक्स्ट वन इज लीडर. यस, वो एक लीडर की तरह बिहेव करता है. जो भी काम होगा उसको आगे कौन लेके जाता है? रजिस्ट्रार. नेक्स्ट वन इज लाइसेंस ऑफिसर. लाइसेंस हम बोल सकते हैं कि मिडिल मैन, या जो बीच में रह के काम करता है. कुछ मैसेज यहाँ से वहां पहुंचाना है. ऐसे मैंने अभी बोला जैसे जैसे हमारा बात हुआ अभी कि सोसाइटी का कुछ प्रॉब्लम है, सोसाइटी को पैसे की कमी है, फंड्स चाहिए सोसाइटी को आगे काम करने के लिए. फंड्स कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट. बट स्टेट गवर्नमेंट को कौन बताएगा कि पैसे की जरूरत है सोसाइटी को? वो है रजिस्ट्रार. लाइसेंस ऑफिसर मीन्स जो बीच में रह के काम करता है दोनों साइड से. ओके, नेक्स्ट वन इज गार्जियन. अब सोसाइटी को स्टार्ट करने में किसने परमिशन दिया? रजिस्ट्रार ने. तो वो कौन हुआ? गार्डियन हुआ. सोसाइटी पे ध्यान कौन देगा?
रजिस्ट्रार, ओके, कि क्या कैसे काम करना है, कौन से हमने बिजनेस ओपन करने हैं, what all business should be opened, where the money should be invested, from where the raw material should be purchased, how many members should be there, what should be the rules, what should be the regulations. All this is done by registrar. So he is a guardian of cooperative society. Okay. Next one is guide. Yes. Whenever there is a problem, registrar or commissioner guides cooperative society. Then strict administrator. Yes. Strict administrator means administration work means जो पेपर वर्क होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये सब जो बनते हैं, जो भी बुक्स मेंबर रजिस्टर, शेयर रजिस्टर, अलग अलग रजिस्टर होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो रजिस्ट्रार होता है उसने क्या करना चाहिए कि अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए। ओके, उतना ध्यान रजिस्ट्रार का होना चाहिए कि जो भी काम हो रहा है वो बराबर से हो, उसने उस मामले में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ही शुड बी स्ट्रिक्ट while handling the or giving the or conducting the administrative work. ओके, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स हम नेक्स्ट वीक बना लेंगे, ये काम हम बाद में कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो उसके लिए रजिस्ट्रार को क्या होना पड़ता है? स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मीन्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे अगर भाई बहन में झगड़ा होता है तो कौन सॉल्व करता है? मम्मी पापा, राइट? तो वहां पर मम्मी पापा कौन हुए? आर्बिट्रेटर, की दोनों की बात सुनी और एट द एंड एक डिसीजन सुनाया कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। वैसे ही रजिस्ट्रार काम करता है। कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कौन सॉल्व करेगा? रजिस्ट्रार। और कमिश्नर मीन्स वो कैसा बिहेव कर रहे हैं? आर्बिट्रेटर की तरह। दे आर बिहेविंग एज अ arbitrator there. Okay, who is solving problem? They listen to both the parties, whatever the grudges are there, जो भी झगड़े हैं उसको पूरा सुन के, दोनों पक्षों की बात सुन के एक डिसीजन लेते हैं, उसको हम बोलेंगे तो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज अ आर्बिट्रेटर। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएटर, गार्डियन एंड लिक्विडेटर। यस, क्रिएटर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया रजिस्ट्रार ने, तब जाके सोसाइटी क्रिएट हुई। गार्डियन वो हमेशा हेल्प करता है सोसाइटी को। लिक्विडेटर, कुछ अगर सोसाइटी नहीं चल रही है, सोसाइटी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, तो रजिस्ट्रार ही सोसाइटी को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज डेसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। यस, सेम, society is not doing well, society is going in losses, if not proper work is going on in society, registrar can take decision of dissolution. Dissolution means company को ताला लगना, society को ताला लगना। So registrar have that, it is his role to dissolute that society. कोई अगर बहुत ही लॉस में जा रही सोसाइटी तो क्यों रखना, फिर क्यों हम लॉस झेले हर साल? उसके सोसाइटी को वो बंद ही करना है। ये कौन ऑर्डर पास करेगा? रजिस्ट्रार। ओके, नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। So what are the functions? There are three functions. They are statutory function, controlling function, and development function. Very easy. What are the statutory functions? First one is registration of cooperative society. Yes, you know, but by now that registrar registers the society. Without registration certificate, society cannot work. Society cannot start working. Yes, बिना रजिस्ट्रेशन के सोसाइटी काम नहीं कर सकती, तो उसको रजिस्ट्रेशन कौन देता है? रजिस्ट्रार। नेक्स्ट, अप्रूवल्स ऑफ बायलॉज। बायलॉज मीन्स रूल्स। जो भी रूल्स सोसाइटी के बने हैं उसकी 4 कॉपीज जाएगी, 4 सेट जाएंगे, 4 कॉपीज जाएगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को चेक करना है। अप्रूव मीन्स परमिशन, परमिशन देना है रूल्स के लिए। उसके बाद उसको चेक करना पड़ेगा कि रूल्स बराबर है या नहीं, सोसाइटी, कंपनी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, प्रैक्टिकल है या नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी, कितना लोन हम
सोसाइटी ले सकती है, कितना इन्वेस्ट सोसाइटी कर सकती है, ये सब वो बाईलॉज में दिया होगा। और उसको अप्रूव कौन करेगा? रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार ने अप्रूव नहीं किया कि ये बाईलॉज गलत है, तो वो रूल सोसाइटी में नहीं चल सकता। ओके, नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यस, वी टॉक्ड अबाउट इट कि जो भी सर्टिफिकेट होता है कंपनी स्टार्ट करने का रजिस्ट्रेशन का, वो कौन इश्यू करता है? रजिस्ट्रार और कमिश्नर। नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप अप्रूवल। यस, मेंबरशिप अप्रूवल मीन सपोज कि कहीं अगर क्या होता है कि हमने पढ़ा था अभी इसके पहले कि मैनेजिंग कमेटी अप्रूव करती है मेंबरशिप के लिए। सपोज किसी को अप्रूव नहीं किया है मैनेजिंग कमेटी ने, ओके, अक्षय नाम का लड़का है, उसको अप्रूव, उसने अप्लाई किया था सोसाइटी में मेंबरशिप के लिए, उसको मेंबरशिप नहीं मिला है, वो अक्षय जा सकता है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। दैट अक्षय कैन गो टू रजिस्ट्रार, मींस ही कैन कंप्लेन इट टू रजिस्ट्रार। और फिर रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसको अप्रूवल अगर सही रहेगा सब, तो उसको वो अप्रूवल देगा। ओके, next one is classification of society. Yes, there are different types of societies like consumer cooperative, then trade cooperative, processing cooperative, marketing cooperative, student cooperative। अलग अलग सोसाइटीज होती है अलग अलग चीजें करने के लिए। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मिंग कोऑपरेटिव जो खेतों में काम करती है, यस, जो खेतों के लिए काम करती है। हाउसिंग जो घर बना के देती है। प्रोसेसिंग मतलब जो खेतों से माल आया है उसको आगे प्रोसेस करके बेचना, जैसे कॉटन में से साड़ी बना के, कॉटन की साड़ी बना के बेचना। मार्केटिंग जो चीजों को मार्केट करने में है, वैसे अलग अलग तरह की सोसाइटीज होती है। उसको क्लासिफाई कौन करेगा? रजिस्ट्रार। क्लासिफाई मतलब कि जैसे भी खेत से रिलेटेड है तो वो किस में आए, किसके अंडर आएगा? सोसाइटी फार्मिंग के। मार्केटिंग के रिलेटेड है तो सोसाइटी किसके अंडर आएगी? मार्केटिंग सोसाइटी के अंडर आएगी। यस, तो ये क्लासिफिकेशन कौन करता है? रजिस्ट्रार। नेक्स्ट, कॉल एंड कंडक्ट्स द मीटिंग। यस, हमने पढ़ा कि मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट करती है, मीटिंग कॉल करती है, चेयरमैन मीटिंग कॉल करता है, बट अगर उन्होंने भी नहीं किया हो टाइम से, तो किसको करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। ओके, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सोसाइटीज फंड। यस, गरीब लोगों का पैसा लगता है सोसाइटी में। members are from weaker section, members are from economically poor side सेक्शन, राइट, गरीब घर से आते हैं लोग। तो उनका जो भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, सोसाइटी में इन्वेस्ट हुआ है, क्या वो वेस्ट जाना चाहिए? क्या नहीं। तो रजिस्ट्रार ने ऐसे काम, ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से लॉस ना हो, जहां से प्रॉफिट। मीन्स रजिस्ट्रार शुड इन्वेस्ट मनी इन प्रॉफिटेबल मैनर। Okay, he should invest money in profitable manner that gives us profit. Okay, he should invest funds, society's fund in to its fullest. Okay, he should not waste it. He should see frauds are not there while consuming the society's fund. Okay, fund should be invested with intelligence. Okay, next one is arbitration or judge. As I told you that registrar behaves as an arbitrator, both the parties. He listens to both the parties. कोई झगड़ा हुआ है, दोनों पक्षों की बात सुनना और फिर डिसीजन लेना, वो किसका काम है? रजिस्ट्रार का। ओके, नेक्स्ट वन, कंट्रोलिंग फंक्शन to look after administration. Yes, as I told you, to look after administration means जो पेपर वर्क होता है उसका, उस पर ध्यान देना किसका काम है? अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या है? कंट्रोल होना चाहिए। ओके, कंट्रोलिंग फंक्शन टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो भी पेपर वर्क है, वो कंट्रोल किसने करना चाहिए? रजिस्ट्रार ने। ओके, कि उसके अंडर में सब होना चाहिए। कुछ फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं क्या? कोई बीच में कहीं से पैसा अपने घर लेके जा रहा है या कुछ भी, कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, करप्शन तो नहीं चल रहा सोसाइटी में, ये सब ध्यान देना किसका काम है? रजिस्ट्रार का। ओके, देन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मीन्स ऑडिटर होता है, ऑडिटिंग के लिए मतलब चेकिंग होती है सारे अकाउंट्स की, बट ऑडिटर तो उसका काम करेगा ही, बट रजिस्ट्रार ने भी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस, जो भी ट्रांजैक्शन, एज आई टोल्ड यू, पीपल आर फ्रॉम वीकर सेक्शन हु आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन सोसाइटी, देयर मनी शुड बी
invested in profitable manner. So that control should be there from registrar, that whatever the money is invested, that is whatever financial transaction is there, that should be in the profitable manner. Okay. Next one is taking action on cooperative society. Yes. A society is doing any illegal work, a society is not doing the work properly, if staff is not good, if employees are not good, if members are not behaving properly, managing committee is not doing their work properly, if any mishappening is happening in society, registrar can take action on that. Okay, he can take action on that. He can पेनल्टी लग सकती है सोसाइटी को, उसके लिए कुछ फीस भरनी पड़ सकती है, फाइन भरनी पड़ सकती है, या कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती है, सोसाइटी बंद भी करनी पड़ सकती है. ये किसके पास पावर है? रजिस्ट्रार के पास. ओके. नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो भी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये हमको पॉलिसीज फ्रेम करनी है, सॉरी ये पॉलिसी हमको इम्प्लीमेंट करनी है, यू नो द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नाउ, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स. जो भी हमको पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, अब रजिस्ट्रार का ध्यान होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दिए हैं, रूल्स बनाए हैं, सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं. ठीक, ऐसा काम है देखना रजिस्ट्रार का. नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट फंक्शन. लीडर ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर प्रोवाइड्स गाइडेंस, सॉरी लीडर ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, यस, डेवलपमेंट फंक्शन. रजिस्ट्रार इज अ लीडर, यस, ही लीड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. वो रास्ता दिखाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कौन सा सोसाइटी ओपन करना चाहिए, या फिर किस तरह से काम करना चाहिए, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से लोन लेना चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, ये सब कौन देखता है? रजिस्ट्रार. सो ही इज अ लीडर. नेक्स्ट वन, प्रोवाइड गाइडेंस. यस, ही प्रोवाइड गाइडेंस, you know about this. Next one is provides technical guidance. Yes, provides technical guidance means बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में हेल्प करता है. जो भी अकाउंट्स बनते हैं सोसाइटी में, वो स्मूथली होने चाहिए. ये कौन देखता है? रजिस्ट्रार. ओके. देन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस. सपोज सोसाइटी में फंड्स कम है, सोसाइटी को पैसे चाहिए, पैसे कम है सोसाइटी के पास, तो कौन ध्यान देता है उस पर? ये कंप्लेन किसके पास, या फिर ये मैसेज किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार के पास. और रजिस्ट्रार किससे पैसे अरेंज करवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट से. Okay, he'll arrange money from state government and he'll help societies with money. Provide financial assistance means financial help, पैसों की help. Next one is accelerate loan recovery. Accelerate क्या होता है? गाड़ी में ऐसा होता है, accelerator होता है कि मतलब उससे speed बढ़ती है. Yes, so accelerate loan recovery means जो भी पैसा लोगों ने लिया है, पैसा वापस नहीं मिल रहा है, उसके लिए लोग पैसा नहीं वापस दे पा रहे हैं. जो भी लोन दिया है, हमने 100 लोगों को लोन दिया है, 100 में सिर्फ 12 लोगों ने पैसे हमें दिए हैं, बाकी के लोगों का क्या? तो कंपनी लॉस में जाएगी ना इसकी वजह से, राइट? कंपनी विल सफर लॉस बिकॉज ऑफ दिस. सो एट दैट टाइम रजिस्ट्रार अपॉइंट्स अ रिकवरी ऑफिसर, जो पैसा रिकवर करता है लोगों से. ओके. और इसके वजह से जो लोन रिकवरी स्पीड है वो एक्सेलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है. Okay, next one is education and training to the members. Means members are from poor family, they are illiterate, they don't have much knowledge about societies, about market. So it is the duty of registrar, which as it is given in development function, it is the duty of registrar to develop those members. Okay, gives them education, normal education, basic education, gives them training. Training of what? Training of doing work in societies, developing their selves. Okay. This if members are educated, if members are trained, they will work good in society. Okay. So these were the functions, development functions of cooperative, of registrar, sorry, development function of commissioner and registrar. Leader of society, cooperative sector, then it provides guidance, provide technical guidance, provide financial assistance, accelerate loan recovery, education and training to the members.
Controlling function to look after administration, auditing, control on financial transaction, taking action on cooperative societies, implementation of government policies. Then statutory function was registration of CS, approval of bylaws, issue of registration certificate, membership approval, classification of society, calls and conduct meeting, investment of society's fund, arbitrator. We learned about Commissioner and Registrar of Cooperative Society. We learned its meaning and role of CS. He is a Commissioner and Registrar. He is a representative, leader, license officer. He is a guardian, guide, strict administrator, arbitrator, creator, guardian, liquidator, dissolution of society. He is a power to dissolve the society. It is his role that he can dissolve the society. Yes? So, in our next lecture, we'll finish this chapter, okay? Okay, so today we have started with third chapter, that's Commissioner and Registrar of CS. Okay, we saw roles of CS and roles of Commissioner and Registrar and functions of Commissioner and Registrar. There are three functions: statutory function, controlling function, and development function, right? In our next lecture, we'll see power of Commissioner and Registrar. Okay, so student, if you have any doubt, please ask me, and stay home and study.